Hi everyone, this is CA Hardik Thakkar, and in this video we are going to learn and understand buyback of equity shares. Okay, so if you are in your second or third year graduation, BAF, BCom, BMS, BFM, BBI, and if this chapter is a part of your syllabus, and if you are comfortable with Hindi and English, that is a English language, then this video is for you. Okay, so without any further ado, let us dive into the world of buyback of shares. चैप्टर समझने से पहले वी विल अंडरस्टैंड अ कपल ऑफ इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड उसके बाद वी विल प्रोसीड टू अंडरस्टैंडिंग द स्टेप वाइज जर्नल एंट्रीज इन दिस चैप्टर. ओके, तो पहला टर्म जो हम समझेंगे दैट इज द मीनिंग ऑफ शेयर. शेयर का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? इफ दिस सर्कल रिप्रेजेंट्स द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, ये टोटल शेयर कैपिटल का जो सबसे स्मॉलेस्ट डिविजिबल पोर्शन है, दिस स्मॉलेस्ट डिविजिबल पोर्शन इज कॉल्ड शेयर. So share literally means हिस्सा in the share capital of the company. And कौन सा वाला हिस्सा? A smallest divisible हिस्सा. Okay? Shares are of two types. One is preference shares and second is equity shares. Preference shares का मतलब क्या होता है? If the shares that you have has a priority or a preference in these two things, then your shares are called as preference shares. Which are those two things? First is payment of dividend. इसका मतलब अगर आपको इक्विटी शेयर होल्डर के कंपैरिजन में पहले प्रायोरिटी मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड, देन योर शेयर इज अ प्रेफरेंस शेयर. आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, आप मतलब कंपनीज कैन नॉट पे डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स विदाउट फर्स्ट पेइंग डिविडेंड टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑलवेज. ओके, सो यू गेट अ प्रायोरिटी ओवर देयर. एंड सेकंड इज रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. That means when company is being wound up or liquidated, when we sell the assets and pay off the liabilities, तो liabilities pay करने का जो sequence and जो order है, उसके अंदर preference shareholders will always get their arrears of dividend and their principal portion first, and उसके बाद जो पैसा बचता है, that money will go to equity shareholders. That is why आपने सुना होगा that equity shareholders are also called as residual owners of the company. Why? Because preference को देने के बाद जो बचा कुचा होता है that belongs to equity shareholders. Okay, so if you get priority in these two things, you are a preference shareholder. Okay, what is the meaning of equity share? Equity shares are shares which are not preference shares. Okay, because shares दो ही टाइप के होते हैं, equity और preference. तो हमने preference को define कर लिया. जो preference है वो preference है, जो preference shares नहीं है, those shares are automatically equity shares. Okay, they are the real owners of the company. ये चैप्टर के अंदर जब हम बायबैक की बात करेंगे, सो बायबैक का मतलब क्या होता है? बायबैक मींस वी आर रेफरिंग टू रीपर्चेज ऑफ ओन इक्विटी शेयर्स बाय द कंपनी फ्रॉम द पब्लिक. दैट मींस द प्रोसेस और द एक्ट ऑफ repurchasing the shares by the company from the public or from the existing shareholders, this process or phenomena or event is called as buyback of shares. ठीक है, कंपनी ने पहले शेयर्स इशू किए थे, अब कंपनी वापस क्या कर रही है? उस शेयर्स को बाय बैक यानी रीपर्चेस कर रही है. ओके, दिस एंटायर event is governed by section 68 and onwards of Companies Act 2013. So a lot of rules and regulations that we are going to study is relating to Companies Act 2013. Okay, बायबैक करने के बहुत सारे रीजंस होते हैं. कंपनी को अपना ईपीएस अर्निंग्स पर शेयर इंप्रूव करना है, कंपनी को अपना हॉस्टाइल टेक ओवर अवॉइड करना है. सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस. ओके, बट आई विल नॉट गो मच इनटू थियोरेटिकल एस्पेक्ट बिकॉज वो लॉ का पार्ट हो जाता है. Right now in this video I want to keep it very concise and focus on journal entries of the chapter. Okay, so as per the Companies Act what can be the journal entries, और आप अगर step wise इसको याद करोगे so that entire sequence is going to be very smooth for you. Okay, step 1 in buyback of shares is making sure that equity shares before they are bought back are fully paid up. ठीक friends, this is very important. अगर आपके शेयर्स पार्टली पेड है, आप ऐसे शेयर्स को बायबैक नहीं कर सकते. सो द फर्स्ट स्टेप टू डू इज कन्वर्टिंग पार्टली पेड शेयर इनटू इक्विटी शेयर. वो हम कैसे करेंगे? व्हेन कंपनी विल मेक अ कॉल फॉर द पार्टली पेड अमाउंट एंड देन कंपनी विल रिसीव दैट कॉल अमाउंट, तो पार्टली पेड शेयर फुल्ली पेड में कन्वर्ट हो जाएंगे. सो व्हेन कंपनी विल मेक अ कॉल, व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंपनी?
By the way, all these journal entries are happening in the books of a company which is going for buyback of shares. Please note that. Okay. So पहला जब कंपनी कॉल करेगी, journal entry will be share final call because receivable and receivables are on the debit side. Okay. And to equity share capital because capital का पैसा जब receivable है, capital is a liability, it is on the credit side. When company will receive those final call, okay, then journal entry will be bank account debit because definitely when the money is received, bank account is debited. When money is paid, bank account is credited. तो यहाँ पर फाइनल कॉल का पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट. क्लियर? तो ये स्टेप से क्या हो गया, हमारे पार्टली पेड शेयर्स फुल्ली पेड में कन्वर्ट हो गए. सेकेंड स्टेप, अभी बायबैक करना है, मतलब हमें कंपनी के पास, हमें पब्लिक के पास से शेयर्स वापस परचेस करने हैं, which means we are going to pay them money and buy back the shares. For that we will need funds. Sometimes कंपनी के पास enough funds होगा, कभी कभी कंपनी के पास funds नहीं होगा. तो funds raise करने के लिए academically we will be exercising 3 options. Okay, क्वेश्चन के अंदर या एग्जाम के अंदर आपको ये तीनों भी हो सकते हैं, ये तीन में से 2 भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, और हो सकता है एक भी ना हो if company is already having enough funds with them. Okay, लेकिन अगर 3 ऑप्शन एकेडमिकली दिखे तो वो कौन से हो सकते हैं? फर्स्ट इज यू रेज द फंड्स बाय सेलिंग द इन्वेस्टमेंट्स. व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? व्हेन यू सेल एन इन्वेस्टमेंट यू रिसीव मनी इन बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड. क्योंकि इन्वेस्टमेंट असेट है, हमारे पास से असेट अगर चला गया तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. ऑब्वियसली सेल करते टाइम वी विल एक्सपीरियंस ईदर अ प्रॉफिट और अ लॉस. It might be sold at par also. In that case, entry will be bank account debit to investment. लेकिन अगर investment sell करते वक्त if we are incurring a loss, तो P&L account will be debited, and if we are selling our investment at profit, our P&L account will be credited. तो या तो डेबिट में होगा या तो क्रेडिट में होगा P&L. Then we can issue debentures. Okay, we can raise a debt to finance our buyback. तो अगर हम debentures issue कर रहे हैं, अगेन पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट is debited. Because debentures are getting issued, debentures account is credited. Okay, अगर आपने डिबेंचर को डिस्काउंट पे इशू किया, मतलब अगर 100 रुपीज का डिबेंचर आपने 90 में इशू किया है, then 10 rupees will be debited as a discount because it is a loss for the company. And अगर आपने 100 रुपीज का डिबेंचर अगर 110 रुपए में इशू किया है, 110 रुपीज, then securities premium account will be credited. Clear? थर्ड ऑप्शन इज इशूइंग प्रेफरेंस शेयर्स. ओके, अगर आप प्रेफरेंस शेयर इशू करोगे तो व्हाट कैन बी द जर्नल एंट्री? अगर आपने 100 का प्रेफरेंस शेयर 100 में इशू किया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. ओके, अगर आपने 100 रुपीज की फेस वैल्यू का प्रेफरेंस शेयर 110 रुपीज में इशू किया, सो 100 रुपीज विल गो टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड 10 रुपीज विल गो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम. परफेक्ट. सर यहां पर आपने डिस्काउंट क्यों नहीं लिखा? बिकॉज यहां पर Companies Act 2013 says, section 53 to be very precise, it says that any shares, be it equity or preference, cannot be issued at discount. तो या तो वो पार होगा या वो प्रीमियम होगा. Shares will never be offered at discount as per latest rules of Companies Act 2013. Okay. Step 3 and probably the most important step is creation of CRR, which is Capital Redemption Reserve. Okay. ये कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्यों क्रिएट करना पड़ता है? बिकॉज कंपनीज एक्ट 2013 सेज दैट जब भी आप प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करो या फिर आप अपने इक्विटी शेयर को बायबैक करो, उस टाइम पे whatever is the net reduction in the share capital, ये शेयर कैपिटल में जितना भी आपका नेट रिडक्शन होता है उतना अमाउंट आपको एक रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा, which will be called as capital redemption reserve. It is a reserve created because of redemption of capital. अब ये कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व आप कहां से क्रिएट करोगे? फर्स्ट यू विल यूज योर डिविजिबल प्रॉफिट. डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस बिकॉज डेबिट बैलेंस इज अ लॉस, सो क्रेडिट बैलेंस ऑफ P&L, डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व. इन 3 रिजर्व को टोटल करके बोला जाता है फ्री रिजर्व और डिविजिबल प्रॉफिट. तो पहले आप इसको यूज करोगे एंड ये यूज करने के बाद अगर पैसा कम पड़ता है, इफ यू आर फेसिंग अ शॉर्टफॉल, you can also use securities premium account. Mind you friends, securities premium is not a divisible profit, but securities premium can be used for creation of CRR under buyback of shares.
अगर आपने रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर पढ़ा होगा तो उस केस में ये सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट आपको नहीं दिखेगा फॉर क्रिएशन ऑफ सीआरआर, बट इन केस ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स apart from divisible profit you can also use securities premium, please note that. So जो भी रिजर्व से हम पैसा निकालेंगे those reserves will be debited and of course CRR, that is capital redemption reserve, will be credited. याद रखना, whenever you take money from a reserve, reserve is debited and whenever you put money into the reserve, that reserve is credited. तो हमने सारे डिविजिबल प्रॉफिट सिक्योरिटी प्रीमियम से रिजर्व लिया, पैसा लिया, तो दोज आर डेबिटेड एंड हमने पैसा डाला सीआरआर में, तो सीआरआर अकाउंट इज क्रेडिटेड. ओके, ये होने के बाद नाउ वी विल इन्फॉर्म अवर इक्विटी शेयर होल्डर्स दैट यस हमने सारी तैयारी कर ली है, अब आप आ सकते हो और अपना पैसा लेके जा सकते हो. ठीक है, सो व्हेन वी इन्फॉर्म और व्हेन वी सेटल द अकाउंट विद इक्विटी शेयर होल्डर्स, इट टिपिकली इन्वॉल्व्स two transactions. Okay, first is informing equity shareholders and second is payment to equity shareholders. जब हम इनको inform करेंगे, equity share capital account will be debited with the face value. Let's say face value is 10 rupees. Okay, and अगर हमने buyback करते वक्त, if we have offered them a premium, which is most likely the case, because अगर आप 10 रुपए के सामने 10 रुपया दोगे तो कोई इक्विटी शेयर होल्डर अपना शेयर्स आपको क्यों रिटर्न करेगा, unless you offer them a premium or a lalach. Okay, so if you are offering them extra over and above the face value, that over and above extra wala amount will be termed as premium on buyback, which is profit for the shareholder but which is a loss for the company. Okay, so because it is a loss, premium on buyback account is going to be debited. Let's say हमने 5 rupees का premium offer किया over and above face value, so 10 rupees will be debited in the share capital, 5 rupees will be debited in premium on buyback and equity shareholders account will be credited with 15 rupees because उतना amount shareholders को payable. Clear? जब हम पेमेंट करेंगे इक्विटी शेयरहोल्डर को, तो इक्विटी शेयरहोल्डर्स अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. ओके, बिकॉज इक्विटी शेयरहोल्डर को हम पेमेंट कर रहे हैं, बैंक अकाउंट इज क्रेडिटेड. अगर हमने शेयरहोल्डर्स को प्रीमियम पे रिडीम किया है, ओके, अगर हमने उनको एक्स्ट्रा पैसा दिया है प्रीमियम ऑन बायबैक, तो वो प्रीमियम ऑन बायबैक का अकाउंट हम अपने बुक्स में रख के क्या करेंगे, अदरवाइज इट विल अपीयर ऑन द डेबिट साइड एज अ फिक्टिशियस असेट. सो rather than this account appearing as a fictitious asset, what is the most logical thing to do? Write that off. तो हम इसको क्या करेंगे, प्रीमियम ऑन बायबैक को राइट ऑफ करेंगे. ठीक है, प्रीमियम ऑन बायबैक को राइट ऑफ करने के लिए पहले हम लोग इस्तेमाल करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट. And if securities premium account is not sufficient, we will utilize divisible profits. Okay, यहां पर याद रखना, पहले आप सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज करोगे एंड देन यू विल यूटिलाइज डिविजिबल प्रॉफिट. प्लीज रिमेंबर, फॉर क्रिएटिंग सीआरआर फर्स्ट यूज डिविजिबल प्रॉफिट देन यूज सीआरआर, and in writing of premium on buyback first use securities premium and then use divisible profit and you write off premium on buyback. Okay, now what is the purpose of creating CRR? CRR create करने का पर्पस ये है कि आपने जो शेयर कैपिटल कम किया है वो आप वापस रिस्टोर करोगे. एंड रिस्टोर आप कैसे करोगे, बाय इशूइंग बोनस शेयर्स. एंड बोनस शेयर इशू करने के लिए हमने कौन सा रिजर्व क्रिएट किया हुआ है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व. कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का कोई और पर्पस नहीं है लाइफ में, इट इज ओनली क्रिएटेड टू इशू फुल्ली पेड बोनस शेयर्स. तो अगर आप सीआरआर को यूज करके बोनस शेयर्स देते हो तो यू विल यूटिलाइज सीआरआर, दैट मींस सीआरआर अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. बाय चांस अगर सीआरआर का पैसा इनफ नहीं होता है, इफ यू वांट टू इशू एक्स्ट्रा बोनस, आप सिक्योरिटी प्रीमियम भी यूज कर सकते हो और डिविजिबल प्रॉफिट भी यूज कर सकते हो. तो उसमें से रिजर्व में से पैसा लिया तो डेबिटेड एंड बोनस टू शेयर होल्डर विल बी क्रेडिटेड. एंड फाइनली व्हेन बोनस टू शेयर होल्डर्स विल बी ट्रांसफर्ड टू इक्विटी शेयर कैपिटल, आई विल जस्ट मेक अ okay, this account will be transferred to equity share capital. Okay, so in short, divisible profit से पैसा गया CRR में, CRR से पैसा गया बोनस टू शेयर होल्डर्स में एंड बोनस टू शेयर होल्डर से पैसा गया इक्विटी शेयर कैपिटल में, विच मींस इनडायरेक्टली 2-3 स्टेप को फॉलो करते हुए डिविजिबल का प्रॉफिट का जो पैसा है दैट गॉट ट्रांसफर्ड और कन्वर्टेड इनटू शेयर कैपिटल, विच मींस बायबैक की वजह से हमारा जो शेयर कैपिटल कम हुआ था वो शेयर कैपिटल हमारा वापस क्या हो गया, वो शेयर कैपिटल हमारा वापस इक्विटी शेयर होल्डर में कन्वर्ट होके बोनस के थ्रू रिस्टोर हो गया. ओके, सो दीज आर द journal entries. Okay, these are the two equations. I will just take 1 minute and I will explain these two equations to you
ठीक है, ये इक्वेशंस को ज्यादा बेटर तरीके से समझने के लिए we will have to see a couple of illustrations जो हम आगे के वीडियोस में कवर करेंगे, but as of now I will just mention what are the two equations. okay, सबसे पहले अगर कोई प्रीमियम ऑन बायबैक का अमाउंट होगा, ठीक है, लेट्स से प्रीमियम ऑन बायबैक इज 1 लाख रुपीस, तो ये 1 लाख रुपीस को आप सबसे पहले राइट ऑफ करने के लिए क्या यूज करोगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम. लेट्स से यू हैव 80,000 ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, तो आप 80,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम पूरा यूज कर लोगे एंड रिमेनिंग 20,000 यू विल टेक फ्रॉम डिविजिबल प्रॉफिट. ओके, देन अगर मान लो द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर बॉट बैक इज 10 लाख रुपीस, इसके बहुत सारे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एज आई टोल्ड यू व्हिच वी विल कवर इन द अपकमिंग वीडियोस. एज ऑफ नाउ जस्ट टू गिव यू अ सिंपल एग्जांपल, if the face value of equity share bought back is 10 लाख रुपीस एंड ये 10 लाख के शेयर्स को बायबैक करने के लिए अगर आप 4 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू करते हो, फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इश्यूड फॉर बायबैक इज 4 लाख रुपीस, देन इन दैट केस जो रिमेनिंग अमाउंट होगा विच इज द नेट रिडक्शन इन द शेयर कैपिटल, वो नेट रिडक्शन इन शेयर कैपिटल का आप क्या क्रिएट करोगे, यू विल क्रिएट CRR and this CRR will be created by using general reserve, PNL, dividend equalization reserve or securities premium if any. okay, so ये equation के permutation combination हम लोग आगे के lectures में discuss करेंगे, and once you figure the amounts in these equation you follow these journal entries, and once you follow these journal entries and pass the entries your question is completed. okay, further part we will understand, when we go further we will also understand how to calculate the number of equity shares to be bought back, but stay tuned for the upcoming videos. And as of now I hope this video was useful for you. Please like, share and subscribe, and I will see you guys in the next video. Thank you so much.